Hello students, a very welcome to all of you. So today we are going to move ahead in the topic. So as you know, we are doing trigonometry 1, second topic under paper 1, which is also known as trigonometric functions. So exercise 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं. Now it is a again very important question that you need to understand. तो चलो please write down exercise 2.1 का first question लिखिए. Find the trigonometric functions of for following angles के trigonometric function find करना है. Now please remember we have defined the trigonometric functions. There are total 6 trigonometric functions: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cot theta. So we have to find out all the trigonometric functions of the following angles. और उसका सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल जो लेने वाले हैं that is nothing but 45 degree. Now these kind of problems also play a very important role. अब वो जो टेबल में वैल्यू मिलता है ना, sin 45 degree, cos 45 degree and all that, तो वो कैसे मिलता है? So it is by using this procedure we are getting those values. So let us understand by solving some examples. So चलो let us begin. So first example 45 degree दिया है. So now let us draw a circle. Please start drawing along with me. तो एक सर्कल आप ड्रॉ कीजिए. In that, this is our coordinate axis. This is x axis. This is y axis. ये origin है. This is x o x dash, and this is y o y dash. Now the angle is always in a standard position. Means उसका जो initial arm है, that is along positive direction of x axis. Angle is in a standard position. We have done it in angle and its measurement. तो ये इसका initial arm है. This is the initial arm. Now the terminal arm will lie in first quadrant. ये टर्मिनल आर्म है. दिस इज रे ओ बी. ठीक है. नाउ दिस टर्मिनल आर्म कट्स द सर्कल एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई. तो नाउ स्टूडेंट्स इफ यू ऑब्जर्व, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज मेजरिंग 45 डिग्रीज. नाउ यू नो दैट एंगल पॉजिटिव है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है. दिस वाज द इनिशियल आर्म, रोटेशन हुआ, इट हैज रीच्ड दिस पोजीशन टर्मिनल आर्म. सो दिस इज 45 डिग्री एंगल बीइंग फॉर्म्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन ओवर हियर. तो अभी हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी. पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे व्हिच मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट एम. So please draw this. Now, as we all know, in this diagram, ये जो length OM है और ये distance OM है, this is nothing but x. Distance OM और length OM is x. Length PM is y, and length OP is the radius of the circle, and radius of the circle is nothing but equal to 1. अच्छा, अब ये रेडियस 1 क्यों है? बिकॉज ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है ना स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट यूनिट सर्कल. ठीक है. और यूनिट सर्कल का रेडियस हमेशा 1 होता है. देखो नोटबुक में मैंने आपको लिख के दिया है, इफ r इज इक्वल टू 1 मींस द सर्कल दैट वी हैव ड्रॉन इज एन यूनिट सर्कल. ठीक है. चलिए प्लीज नोट डाउन दिस, एंड डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए आप. ये डिटेल नोट डाउन कर लीजिए आप. Now, obviously students, अगर ये 45 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री एंगल है. तो ऑब्वियसली दिस एंगल OPM, ये जो एंगल बचेगा, दिस विल बी आल्सो 45 डिग्री एंगल. तो ये जो ट्रायंगल है ना OPM, 45 45 90 वाला ट्रायंगल है. ठीक है ना. नाउ रिकलेक्ट, वी हैव डन 45 45 90 थ्योरम. ठीक है. चलो वो भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना ड्रॉ कर लो, देन विल मूव अहेड. हमने क्या किया? यहाँ पे यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ है.
Now length here, write down. Therefore, length OM, ठीक है ना, length OM is nothing but equal to x. Then length PM is nothing but equal to y, and length OP, which is the radius of the circle, and radius of the circle is nothing but 1 unit. So now write down, in triangle OPM by 45, 45, 90 theorem. Now 45, 45, 90 theorem क्या बोलता है? Let us recollect. Write down. Side, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, लिखो. Side opposite to 45 degree is equal to 1 by root 2 times of hypotenuse. Side opposite to 45 degree is 1 by root 2 times of hypotenuse होता है. चलो लिख लो ये. Then we will move ahead. So now what will happen? Observe over here. ये statement है 45, 45, 90 theorem का. Now side opposite to 45. Now you see this triangle OPM. Now ये 45 degree angle है, which you can observe. Just take my marker. 45 degree angle है. 45 degree को angle जो opposite side है, that is PM. So write down. Therefore, side opposite to 45 is length PM, and length PM is nothing but y, and this is 1 by root 2 times of hypotenuse, and hypotenuse is length OP. So this will be further equal to 1 by root 2 length OP. देखो कितना है? Length OP is 1. So 1 by root 2 into 1. So obviously it's 1 by root 2. So देखो y का value 1 by root 2 मिल गया. Now similarly this is also 45 degrees. So side opposite to 45 is length OM. So write down on the next line. Therefore, length OM is nothing but equal to x, which is 1 by root 2 times of length OP. So it is 1 by root 2 times of 1. Length OP is 1, and 1 by root 2 into 1, 1 by root 2 ही होता है. So for this problem, x का value 1 by root 2 है, y का भी value 1 by root 2 है. We have used 45, 45, 90 theorem. Underline कर लो इसको आप. एग्जाम में ऐसा लिखना है आपको, हाँ, if they are asking you. And this is the reason how we get that. चलो, please write down till here. Then we'll move ahead. अब ये मैं रब कर देता हूँ because I need space to write down. Now observe students, ये जो point P है, this is lying in the first quadrant, और हमें पता है first quadrant में x और y दोनों positive होते हैं. So write down on the next line. लिखिए, since point P lies in first quadrant, therefore P x comma y is equivalent to, ठीक है, x का वैल्यू क्या आया 1 by root 2, ठीक है, और y का भी वैल्यू आया 1 by root 2. तो दोनों x और y के जो वैल्यूज है दोनों सेम है. दे बोथ आर 1 by root 2 and both are positive because point P lies in the first quadrant. चलो note down this, very important. ठीक है. Now it's very simple. Now we are going to make use of definition. तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया ना. Write down on the next line. ठीक है, अभी थोड़ा दूसरा कलर का पेन यूज कर लेता हूं मैं. तो write down by definition. Now please recollect.
see the definition in the notebook. How do we define sin theta? So sin theta is defined as y. In fact, it is y upon r. So read on. By definition, sin theta. अच्छा, theta कितना है यहाँ पे? Theta is 45 degree. So sin 45 degree is defined as y. देखो आप definition by the circle. It is actually y upon r. पर r का तो वैल्यू 1 है ना. So sin theta is defined as y. Simply आप याद रखो. So now theta is 45 degree. तो हम theta नहीं लिखेंगे. It will be written as sin 45 degree, which is equal to y. And how much is value of y, students? So y का वैल्यू है 1 by root 2. अच्छा, instead of seeing it over here, यहाँ पे देखना है आपको. x and y दोनों पॉजिटिव है, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू 1 by root 2 है. Now write down cos 45 degree. So cos 45 degree is defined by x. देखो cos theta equal to x by r होता है. r का वैल्यू तो 1 है, तो cos 45 degree is equal to x, and x is also 1 by root 2. Now we are going to find out tan 45 degrees. So by definition, tan theta is nothing but y upon x. So y upon x. So this upon this. So 1 by root 2 upon 1 by root 2. तो 1 हो जाएगा. तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है. ठीक है. Now बाकी के जो तीन फंक्शंस है वो तो इनके रेसिप्रोकल्स है ना. तो sin 45 डिग्री का वैल्यू is 1 by root 2. So therefore from here write down cosec 45 degrees का वैल्यू. cosec 45 degrees का वैल्यू will be root 2. अब क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 by root 2 है, therefore sec 45 degrees का वैल्यू will be root 2. And since tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो इसीलिए cot 45 डिग्रीज का वैल्यू भी 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल. That's it. Problem is over. So by using definition, we have got all the 6 trigonometric functions of this angle. हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 45 डिग्री ना. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 45 डिग्री, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 45 डिग्री है. sin 45, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री. अच्छा, डिग्री लिखना जरूरी है. Then cosec 45 डिग्री का वैल्यू, sec 45 डिग्री का वैल्यू एंड cot 45 डिग्री. अभी आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ करके दिया था, उसमें देखो आप टेबल में sin 45 डिग्री का वैल्यू 1 by root 2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 by root 2 and all that, you will find out these values in the table. इसीलिए हमें ये वैल्यूज मिलते हैं वो टेबल में. बट टेबल हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. प्रॉब्लम इज ओवर. Now students, instead of giving 45 degree, अब जरूरी नहीं कि वो जो प्रॉब्लम देगा वो डिग्री के फॉर्म में देगा. तो दिस 45 डिग्री also can be written as pi by 4 radians. ठीक है. नाउ कहाँ पे लिखूं? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. ये जो 45 डिग्री है ना, राइट डाउन नोट, ऐसा एज अ नोट लिख देता हूँ मैं. तो दिस 45 डिग्री एंगल विच ही हैज गिवन, वो आपको ऐसा भी दे सकता है pi by 4 रेडियन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करो. इट्स वन एंड द सेम थिंग. अच्छा, और बहुत सारे ऑप्शंस भी दे सकता है वो. ही कैन गिव अस, इंस्टेड ऑफ गिविंग 45 डिग्री, वो हमें ये 45 डिग्री है ना, तो 360 रोटेशन जब वापस कंप्लीट हो जाएगा तो 360 प्लस 45, he can give us find out trigonometric functions of 405 डिग्री. ठीक है. और else he can give us अलग अलग एंगल्स दे सकता है वो. दूसरा जो एंगल देगा 45 है ना, तो he can give us minus 315 डिग्री. So he can give us this way also. Find trigonometric functions of pi by 4 radian दे सकता है, या he can give us find trigonometric functions of 405 डिग्री भी दे सकता है,
ही कैन गिव अस फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -315 डिग्रीज भी दे सकता है। ये सबका आंसर है, ठीक है। और कुछ भी एंगल्स भी दिए। नाउ सी व्हाट हैपेंस, 405 डिग्री और 45 डिग्री एंगल, इसके दोनों के वैल्यूज क्यों सेम होते हैं? -315 डिग्रीज और 45 डिग्री, इन सब के वैल्यूज क्यों सेम होते हैं? रिकलेक्ट, आई हैव गिवन यू वन नोट, ठीक है ना, ये तो एंगल का नोट है। सेकंड नोट जो मैंने आपको लिख के दिया है, राइट डाउन, वापस लिख के देता हूँ, सेकंड पॉइंट राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, वैल्यूज ऑफ trigonometric functions are same for coterminal angles, ऐसा लिखिए आप, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन, ये हमने किया हुआ है कोटर्मिनल एंगल्स, कितना लिख लीजिए आप। So I hope everyone must have noted down these 2 points. अच्छा, अभी कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? तो रिकलेक्ट, वी हैव डन इट in the first chapter, angle and its measurement. If the difference between any two directed angles is an integral multiple of 360 degrees, then such an angle is called as coterminal angle. देखो मैंने आपको नोट भी लिख के दिया है स्टार्टिंग में, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम डिटेल में। हमें देखो प्रॉब्लम्स को रट्टा नहीं मारने का है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये कोई भी एंगल आया तो उसका यही आंसर होगा। चेक हाउ इट इज एन कोटर्मिनल एंगल, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो। देखो जस्ट फॉर योर रेफरेंस वो करके भी बता देता हूँ मैं। 405 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज, कितना आएगा दोनों का डिफरेंस? 5 - 5 0 6 3, 360 डिग्रीज आया डिफरेंस। तो दिस इज एन कोटर्मिनल एंगल। फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो, चेक 45 डिग्री ग्रेटर एंगल माइनस द स्मॉलर, बड़ा एंगल माइनस द छोटा वाला एंगल, स्मॉलर एंगल। तो 45 माइनस ऑफ -315 डिग्रीज, तो ये कंप्लीट होके हो जाएगा 360 डिग्रीज। कोटर्मिनल एंगल्स है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम फॉर कोटर्मिनल एंगल्स, उनसे भी कोटर्मिनल हो, ठीक है ना। इसमें आप 405 डिग्री एंगल में और 360 ऐड कर दोगे तो वो भी कोटर्मिनल एंगल आएगा। तो नाउ यू ऑब्जर्व, 405 डिग्रीज अगर आपको दिया तो ये 45 है, तो 405 डिग्रीज मींस व्हाट विल हैपन, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे आई विल ट्राई टू शो यू, अब इसमें सर्कल में दिखेगा नहीं, चलो अलग से डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा है, इफ दिस इज, कैन आई शो इट ओवर हियर ओनली? चलो देखो यहीं पे दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये 45 डिग्री एंगल है। देखो अभी ये एंगल ऐसा घूम के यहाँ पे आया, 360 कंप्लीट, 360 प्लस 45 वापस उधर चला गया। तो दिस एंगल विल मेजर नथिंग बट 405 डिग्री। तो उसके भी कोटर्मिनल जो एंगल है उसका सबका जो वैल्यूज है वो सेम रहता है, -315 डिग्री। माइनस मीन्स रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। तो ये 405 हो गया। अभी अगर माइनस ड्रॉ करना है मेरे को, इफ आई वांट टू डू माइनस, तो सी व्हाट विल हैपन ओवर हियर, रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, इट विल रोटेट दिस वे। रोटेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाके ऐसा आएगा, तो दिस विल मेजर -315 डिग्रीज। तो -315 डिग्रीज इज सेम पोजीशन ऑफ 45 डिग्री टर्मिनल आर्म, तो उसके भी जो वैल्यूज है वो सेम रहते हैं। ओके, चलो प्लीज नोट डाउन। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में, सभी प्रॉब्लम्स में यही प्रोसीजर फॉलो करना है। वो एंगल डिग्रीज में भी दे सकता है, रेडियंस में भी दे सकता है, या कोटर्मिनल एंगल्स भी दे सकता है। इफ यू ऑब्जर्व टेक्स्ट बुक में -315 डिग्रीज दिया है, आई गेस, चेक। नाउ टेक्स्ट बुक हैज नॉट नंबर्ड दोस प्रॉब्लम्स, टेक्स्ट बुक ने प्रॉब्लम्स को नंबर नहीं किया है, बट -315 डिग्रीज भी दिया है टेक्स्ट बुक में। देखो लास्ट में जो लास्ट वाला एग्जांपल है, they have given -315 डिग्रीज ऑल्सो। तो दो प्रॉब्लम सॉल्व किए ना एक साथ ही।
45 degree also over and minus 315 degree also over. Check in your textbook. ठीक है, चलो note down, then we'll move ahead to the next example. So let's move on to the second example, students. 150 degree angle or 5 pi by 6 radian. So let us draw a unit circle. Format वही है, structure is same, angle change हो गया है, तो obviously values भी change हो जाएगी. तो चलो draw a unit circle. Now we want 150 degree angle. Sorry. Now this is our x-axis. ये है x o x dash. This is y-axis. Y o y dash. Initial arm. Positive direction of x-axis. ये initial arm है. OA. 150 degree angle. Second quadrant में lie करेगा. So this rotation that has taken place, this angle is measuring 150 degree. इसके trigonometric functions हमें find करने हैं. Now this is the terminal arm OB. ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये OA है, rotate होके OB position तक आ गया. So this is initial arm, this is terminal arm, this is a standard position. ठीक है. Now this ray OB intersects the circle at point P. तो P के coordinates है x, y. अब हम P से perpendicular draw करेंगे, perpendicular to x axis. Always perpendicular x axis पर ही draw होगा, which meets at point M. ठीक है, तो ये x हो गया. Length OM is x, length PM is y, and OP is the radius, and radius is equal to 1. तो वही रहेगा. Length OM, ये unit circle है. Length OM is x, length PM is y, length OP is r is 1. Now but अच्छा अभी अब देखिए ये 150 डिग्री एंगल है. Obviously since this angle is 150 degree, ये जो remaining angle है ये कितना होगा? तो this will measure 30 degrees. ये 30 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा. 180 डिग्री कंप्लीट होना चाहिए ना. So now this triangle OPM is a 30-60-90 triangle. Write down. In triangle OPM by 30-60-90 theorem. अब 30-60-90 theorem क्या बोलता है? If you know, well and good. If you don't know, note down at the top of the page. लिख लो. Write down. Side opposite to 30 degree. Side opposite to 30 degree is half of hypotenuse. And side opposite to 60. Side opposite to 60 is √3 by 2 times of hypotenuse. ठीक है, write down. ये कंपल्सरी, ये आना चाहिए हम. So if you don't know, no problem, note down कर लीजिए आप. So now let us see this triangle OPM. अब देखिए triangle OPM में length PM is y. तो side opposite to 30. तो side opposite to 30 कौन सा है? Length PM है, and length PM is y. तो side opposite to 30 क्या होता है? It is 1/2 times of hypotenuse. Hypotenuse is nothing but length OP. So this is nothing but equal to 1/2 into 1, which is nothing but 1/2. तो y का वैल्यू 1/2 हो गया इस प्रॉब्लम में. लेंथ नाउ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. तो साइड अपोजिट टू 60, ये 60 डिग्री एंगल है, तो उसको अपोजिट साइड लेंथ OM है. तो लेंथ OM is x
and that is nothing but √3/2 times of length OP. So √3/2 into 1 which is nothing but √3/2. ठीक है, राइट डाउन, चलो यहाँ तक लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे. नाउ पॉइंट P जो है, अब देखिए पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, तो पॉइंट P लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. अब रिकलेक्ट करो, वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. तो पी एक्स कॉमा वाई, एक्स इज नेगेटिव, x का वैल्यू नेगेटिव होगा -√3/2 एंड y विल बी पॉजिटिव, तो इट इज 1/2. अभी प्रॉब्लम में x का वैल्यू -√3/2 है और y का वैल्यू 1/2 है. अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हम x y फाइंड करेंगे ना, तो ये तो दोनों हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, दे विल ऑलवेज कम पॉजिटिव. बट जब हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पॉइंट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है और y का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है. बस अब बाय डेफिनेशन राइट डाउन, व्हाट डू वी गेट डेफिनेशन से, फंक्शंस को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है. तो राइट डाउन व्हाट विल हैपन बाय डेफिनेशन, साइन थीटा, थीटा कितना है 150 डिग्रीज है, दिस इज अवर थीटा. तो हम थीटा नहीं लिखेंगे, व्हाट विल राइट डाउन, साइन 150 डिग्री इज y and what is y, y is nothing but 1/2. Cos of 150 degree is defined as x and x is -√3/2. Tan 150 degrees is y upon x, so this upon this, तो वो वैल्यू आएगा -1/√3. Therefore, अब देखो कोसेक 150 डिग्रीज, कोसेक 150 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो y का रेसिप्रोकल 1/y होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2. टेक्स्ट बुक में ही हैज रिटर्न दिस वे. वैसे तो हम कोसेक 150 डिग्रीज डायरेक्टली 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इन योर टेक्स्ट बुक ही हैज रिटर्न y का रेसिप्रोकल 1/y, तो आप भी वैसा ही लिखो, कंपल्सरी नहीं है, डायरेक्टली आप 2 लिखोगे तो भी चलेगा. Sec of 150 degrees, reciprocal of this, so that's 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल तो -2/√3 हो जाएगा. एंड फाइनली कॉट ऑफ 150 डिग्रीज, मतलब इसका रेसिप्रोकल दैट इज x/y एंड दैट इज नथिंग बट -√3. ठीक है, चलो राइट ऑन दिस. तो ये तो थियरम था, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. 30/60. So there are only two triangles that are going to be formed over here. एक तो 45/45/90 थियरम है और एक 30/60/90 थियरम है. दो ही थियरम्स हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. With this example is over. It's a very simple procedure. हमें देखो कौन से एंगल्स हो सकते हैं. दिस, अभी ये 150 डिग्रीज है, बराबर है. ये 150 डिग्रीज में अगर मैं 360 डिग्रीज ऐड कर देता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व ओवर हियर, 150 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड किए, ठीक है. इसमें अगर मैं 360 डिग्रीज ऐड कर देता हूँ, तो सी व्हाट विल हैपन, दिस विल गिव अस 510 डिग्रीज. तो जो 150 डिग्रीज के वैल्यू है वही सेम 510 डिग्रीज के भी वैल्यू आएंगे, क्योंकि एक बार घूम के वापस पूरा यहाँ तक आ जाएगा ना. 510 डिग्री रोटेशन मीन्स 360 + 150 इज 510. तो ये वो अपने को 510 डिग्री भी दे सकता है. तो यू कैन से अरे सर ने ना हमको 510 डिग्री वाला तो प्रॉब्लम ही नहीं करवाया. नो, ठीक है ना. तो सिमिलरली यू राइट डाउन दिस आल्सो. अच्छा, ऐसा भी दे सकता है वो, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, इफ दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो अगर ऐसा घूम के ये वाला एंगल वो पूछ रहा है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, यू नो, दिस विल बी -210 डिग्रीज भी दे सकता है वो. ये सेम -210 डिग्रीज के भी सेम रेशो आएंगे, क्योंकि दिस माइनस दिस, व्हेन वी सबट्रैक्ट दीज टू एंगल्स, इट विल मेजर 360 डिग्री. तो -210 डिग्रीज दिया, तो एरो आपको ऐसा शो करना है,
ये जो क्लॉकवाइज मैंने बताया ना, दिस इज -210 डिग्री का रोटेशन है, विच इज सेम पॉजिटिव 150, मतलब एंटी क्लॉकवाइज -210 मीन्स इट इज क्लॉकवाइज। खाली इतना ही फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे जो एंगल है इंस्टेड ऑफ 150 हम लिखेंगे -210 डिग्रीज लिखेंगे, वैल्यूज तो सेम रहने वाले हैं बिकॉज दे आर co-terminal angles. I have told you in example 1. ठीक है, please note down this also for your reference. तो -210 डिग्रीज आपके टेक्स्ट बुक में है क्या, देख लो आप। नहीं है, -210 डिग्रीज नहीं है, पॉजिटिव 210, ठीक है, डजंट मैटर। ऐसे वो एंगल चेंज करके भी आपको प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। 150 डिग्री देगा, 5 π/6 देगा, या 510 देगा, या -210 देगा, सबका यही आंसर है। Note down, then we'll move on to the next one. Okay, students, let us move on to the third example, 210 degree और 7 π/6 रेडियन भी होता है। 210 डिग्रीज देंगे या 7 π/6 रेडियन देंगे। Now let us draw a unit circle. Same thing continues everywhere. X, O, X dash. This is Y, O, Y dash. ये हमारा टर्मिनल आर्म है, अभी तक तो सॉरी इनिशियल आर्म है, अभी तक तो आपको मालूम चल गया होगा प्रोसीजर। This is initial arm OA, which is in a standard position. Now 210 degrees एंगल पॉजिटिव है, तो रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो दिस इज रे OB, which is terminal arm, and it cuts the circle at point P. ठीक है, ये पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पे ड्रॉ, तो ये 90 डिग्री है। दिस इज M। तो दिस एंगल, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, दिस एंगल इज मेजरिंग 210 डिग्रीज। तो इफ यू ऑब्जर्व, ये जो छोटा सा एंगल होगा, ये 180 + 30 = 210 होता है, तो दिस एंगल इज मेजरिंग 30 डिग्रीज। ठीक है, कहाँ पे लिखूं, 30 डिग्रीज लिखना है मेरे को। चलो, दिस एंगल, दिस इज मेजरिंग 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ना, POM, दिस इज मेजरिंग 30 डिग्री। दिस एंगल इज मेजरिंग 60 डिग्रीज, क्योंकि ये 90 है, तो 30, 60, 90 ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल सेम वही लेंथ OM, दिस इज X, दिस इज Y, एंड OP इज द रेडियस, एंड रेडियस इज 1। ठीक है, वो ट्राइंगल इतना छोटा हो जाता है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू राइट डाउन एवरीथिंग ओवर देयर, बट मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ। ये R = 1 है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो वही सेम 30, 60, 90 ट्राइंगल और थियरम। लेंथ PM, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 इज लेंथ PM। तो साइड अपोजिट टू 30 is length PM, and length PM is Y. So side opposite to 30 is 1/2 times of length OP. तो 1/2 into 1, तो ये 1/2 हो गया, तो Y का वैल्यू 1/2 हो गया। Side opposite to 60 is length OM, that is X. So that is √3/2 times of length OP, which is √3/2 into 1, which is √3/2। ठीक है ना। अभी पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉइंट P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में X एंड Y बोथ आर नेगेटिव, तो सिंस X एंड Y बोथ आर नेगेटिव, X का वैल्यू हो जाएगा -√3/2 एंड Y का वैल्यू विल बी -1/2। X एंड Y बोथ आर नेगेटिव, तो बाय डेफिनेशन, चलो राइट डाउन। अभी सिर्फ यहाँ पे एंगल जो है वो हमें 210 डिग्रीज लिखना है सब जगह पे। दिस इज 210, 210, 210 सब जगह पे। ठीक है,
चलो फाइंड आउट, राइट डाउन दीज वैल्यूज, क्या मिलता है। इट्स वेरी सिंपल, एक्स और वाई का वैल्यू डालना है सिर्फ आपको वहां पे। तो चलो, आई होप एवरीवन मस्ट हैव रिटन। तो साइन 210 डिग्रीज का वैल्यू y है, इन व्हाट इज y, तो y इज -1/2, cos 210 degrees x is -√3/2, tan is sin upon cos, or you can say y upon x, so this upon this, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1/√3। नाउ दीज फंक्शंस आर देयर रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल -2, इसका रेसिप्रोकल -2/√3 और इसका रेसिप्रोकल √3। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। तो 210 डिग्रीज और 7π/6 रेडियंस दिया, तो यही आएगा वो। इट्स वन एंड द सेम थिंग। चलो अभी वो 210 डिग्रीज सपोज अगर आपको नहीं देगा, तो व्हाट एंगल ही कैन गिव, ही कैन गिव अस -150 डिग्रीज। -150 डिग्रीज के लिए भी यही होगा, और अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो -150 डिग्रीज विल बी रिटर्न एज -5π/6 रेडियंस। π/6 मतलब 30 इंटू 5, 150। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है। -150 डिग्री के जो वैल्यूज है वो भी सेम आएंगे। जैसे -150 डिग्री रोटेशन, इट विल बी -150 है ना, तो इट विल बी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा रोटेट होना, एंड ये जो एंगल फॉर्म होगा दिस विल बी -150 डिग्री। तो टर्मिनल आर्म तो इसी पोजीशन पे आया ना, तो 210 डिग्री का टर्मिनल आर्म एंड -150 का टर्मिनल आर्म इज सेम, so they are co-terminal angle, so value will be same। ठीक है, नो डाउन। ऐसा भी दे सकते हैं, तो नेगेटिव एंगल भी हो गया ना। तो 210 डिग्री की जगह पे अगर आपको क्वेश्चन में -150 पूछा है, तो आप नहीं बोलोगे सर हैज नॉट टॉट टू अस कि -150 का ही ऐसा ही डायग्राम आएगा, खाली ये 210 नहीं शो करना आपको, -150, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। टेक्स्ट बुक में है, देखो क्वेश्चन -150 है क्या टेक्स्ट बुक में? नो, इट इज नॉट देयर, -150 नहीं है, बट ठीक है, डजंट मैटर, हो गया प्रॉब्लम। चलो डू इट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हर एक क्वाड्रेंट में एक एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। लेट्स मूव अहेड नाउ। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये होगा हमारा फोर्थ एग्जांपल, राइट? कर दीजिए फोर्थ वन। नाउ 330 डिग्रीज और 11π/6 रेडियन। तो चलो लेट अस ड्रॉ अ यूनिट सर्कल। x axis, x o x dash, y o y dash, 330 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज मेजरिंग 330 डिग्री। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दिस इज अवर इनिशियल आर्म OA एंड दिस इज टर्मिनल आर्म रे OB, एंड ये है हमारा पॉइंट P, x, y। Now we draw a perpendicular from point P which meets x-axis at point M। सब में वही प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, so now what is going to happen, let me use a color pen। तो ये डिस्टेंस x है, आपको पता है, this distance or this length you can say is y, and this is radius, and radius is 1 because it is a unit circle। तो देखो ये 330 डिग्री एंगल है,
तो ये जो एंगल बचेगा ना ट्रायंगल के अंदर छोटा सा, दिस ट्रायंगल OPM, तो दिस एंगल विल मेजर 30 डिग्री 360 कंप्लीट होने के लिए। ये 30 डिग्री एंगल है, ये 90 है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो भाई therefore length OM is X, PM is Y, R is 1 by 30, 60, 90, सेम प्रोसीजर। चलो कर लेते हैं फटाफट। साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 इज लेंथ PM, ठीक है ना, ये P, दिस इज पॉइंट P, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। तो साइड अपोजिट टू 30 इज लेंथ PM, लेंथ PM इज Y, Y इज 1 by 2 times of लेंथ OP। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि लेंथ OP हमेशा 1 ही लेना है, तो दिस इज नथिंग बट 1 by 2 into 1, which is 1 by 2. Side opposite to 60 is length OM. Length OM is X. X is √3 by 2 times of length OP, which is √3 by 2 into 1, which is √3 by 2. Now point P lies in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है X पॉजिटिव और Y नेगेटिव होता है, तो X पॉजिटिव होता है, तो दिस इज √3 by 2, और Y नेगेटिव होता है, तो Y नेगेटिव है, तो इट विल बी -1 by 2। हो गया बाय डेफिनेशन। करो फटाफट। साइन ऑफ 330 डिग्रीज, 330 डिग्रीज, 330, सब जगह पे 330 लिख दो पहले। चलो करते चलो आप, स्टार्ट डूइंग। तो y, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू है -1 by 2, x का वैल्यू है √3 by 2, y by x, तो दिस अपॉन दिस इज -1 by √3, साइन अपॉन कॉस tan होता है, ठीक है ना। इनके रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल -2, इसका रेसिप्रोकल 2 by √3, इसका रेसिप्रोकल -√3, प्रॉब्लम इज ओवर। नोट डाउन, हो गया। Each problem is going to carry 3 marks. ठीक है ना, चलिए नोट। Okay, so there was a slight connectivity issue. Now what I was saying is, instead of giving 330 degree, वो मैं ये सारे भी एंगल्स दे सकता है। It can give us -30 डिग्री, ये एंगल भी दे सकता है, या रेडियन के फॉर्म में वो हमें -π/6 रेडियंस भी दे सकता है। नाउ -30 डिग्री एंगल मीन्स इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल है, this angle that will be formed, this will be measuring -30, तो -30 डिग्रीज के भी रेशियो, मतलब जो वैल्यूज है तो सेम आएंगे। साइन ऑफ -30 डिग्री will be -half, cos ऑफ -30 डिग्री will be √3 by 2, ठीक है। और सपोज ये एंगल है, आप 330 डिग्री को 360 ऐड कर दोगे, तो यू विल बी गेटिंग 690 डिग्रीज मिलेगा आपको टोटल, ठीक है ना। व्हेन यू ऐड देम, तो 690 के भी रेशियो सेम आएंगे, तो ये एंगल अपने को 690 डिग्रीज भी दे सकता है, और एल्स ही कैन गिव अस 690 डिग्री ऑल्सो। तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो 690 दिया तो आपको ये नहीं बोलना अरे सर ने सिखाया नहीं, रोटेट करो आप, वन टाइम रोटेशन 360, 360 फिर वापस घूमेगा सेकेंड टाइम, तो 330 एक्स्ट्रा, तो 360 एक बार रोटेशन कंप्लीट हो गया, 360 प्लस 330 घूम गया, तो टोटल 690 हो गया ना। तो जो 690 का आंसर है, जो 330 का आंसर है, वही 690 का आंसर है, ठीक है ना। इट्स वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज को टर्मिनल एंगल्स आपको पता है। चलो नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी कुछ नेगेटिव एंगल ले लेते हैं, एक आध दो। So let us move on to example number 5, negative angle, as I said.
-225 डिग्रीज और यू कैन से इट इज -5 π/4 रेडियंस। चलो तो यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, तब में यूनिट सर्कल का ही हेल्प लेना है हमें, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। दिस इज x o x डैश, दिस इज y o y डैश। स्क्रीन क्लियर है आपका? देखो, यू लीव द मीटिंग एंड कम बैक, आपका स्क्रीन, आई कैन सी माई लैपटॉप, माई स्क्रीन इज क्लियर, लीव द मीटिंग, कम बैक अगेन, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, आपको पता है दिस इज इनिशियल आर्म, ये इनिशियल आर्म है। नाउ रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज -225, तो देखो ये -90, दिस इज -180, तो -225 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो दिस इज मेजरिंग -225 डिग्री। ये देखो, ये जो एंगल है ना, ये वाला, दिस इज मेजरिंग -225 डिग्री। तो ऑब्वियसली दिस इज द टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। टर्मिनल आर्म कट्स द सर्कल एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स है x, y। We draw a perpendicular from point P which meets x axis at point M. नो डिफरेंस किसी भी प्रॉब्लम में, ऑलमोस्ट सब में सेम है, खाली क्वाड्रेंट और वो पॉइंट और वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। तो दिस एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस विल मेजर 45 डिग्री। So this is 45 degree angle, this is 45 degree angle and this is 90. 45 45 90 थ्योरम यूज करना है हमें। तो चलो लिखो, ये डिस्क्रिप्शन तो सेम है। इट्स अ यूनिट सर्कल, आपको पता है, इन ट्रायंगल OPM। तो इट इज बाय नाउ 45 45 90 थ्योरम। Side opposite to 45, so side opposite to 45 is length PM, length PM is y, so it is 1/√2 times of length OP, length OP 1 है, so this is 1/√2 into 1, which is 1/√2. Side opposite to 45 is x, x is, this is also 1/√2 times of length OP, देखो फटाफट, this is 1/√2 into 1, which is again 1/√2. बट ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है अभी स्टूडेंट्स? इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो x विल बी नेगेटिव, so it will be -1/√2 and y will be positive, which is 1/√2, ठीक है। चलो नोट डाउन। तो x का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो बाय डेफिनेशन साइन ऑफ -225 डिग्री, -225 डिग्रीज का वैल्यू y है, और y क्या है? y इज 1/√2, cos ऑफ -225 डिग्रीज इज x and x is -1/√2, tan of -225 degrees is y by x, so this upon this is -1, ठीक है। ये पहले का एंगल था, मैं भूल गया रब करना, तो दिस इज, just I remove this off, so this is -225 degrees, -225 degrees and -225 degrees, हाँ। तो इसका रेसिप्रोकल इज √2, इसका रेसिप्रोकल इज -√2, इसका रेसिप्रोकल इज -1। हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर, लिख लो।
नाउ दिस -225 और -5 π/4 को अगर वो एंटी क्लॉकवाइज देता है तो वो ये एंगल भी दे सकता है हमें. दिस विल बी 145 डिग्री. ये 135 डिग्री एंगल फॉर्म होता है एंटी क्लॉकवाइज में. तो 135 डिग्री के भी सेम रेशियोज है, मतलब जो वैल्यूज है इट विल बी सेम. 135 means it is nothing but π/4 into 3. तो 3 π/4, 45 into 3. तो ये लिख लो आप, ये भी हो सकता है वो. तो है क्या टेक्स्ट बुक में, आप देख लेना. 135 डिग्री, नो इट इज नॉट देयर. 135 डिग्रीज नहीं दिया, -225 है टेक्स्ट बुक में. -225 डिग्रीज है, but they have not given 135. 130 का भी 135 के भी सॉरी सेम ही आंसर्स होते हैं. चलो नोट डाउन, then we'll move ahead. Okay students, now let us move on to the next example. 180 degrees or pi radians. So let us draw a unit circle. Okay, now what will happen over here? चलो डेफिनेशन से तो यहीं पे आ जाएगा ना, तो सर्कल थोड़ा छोटा कर देता हूँ. इससे बड़े सर्कल की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमें ट्रायंगल भी ड्रॉ नहीं करना है. Directly this gets evaluated. So let us take a smaller circle. This is x-axis, x o x dash, and this is y o y dash. Okay, this is our initial arm. This is OA, and 180 degree rotation हुआ है. So this is our terminal arm. It lies on axis itself. This is ray OB. ये initial arm है, ये terminal arm है. This is straight angle 180 degree. और ये जो रोटेशन हुआ है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज मेजरिंग 180 डिग्री या पाई रेडियन बोल लो आप उसको. नाउ व्हाट विल हैपन, जो पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P. चेक आउट. नाउ पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, पॉइंट P इज लाइंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? तो P के कोऑर्डिनेट्स विल बी -1, 0. x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0 आएगा. सो यू रिमेम्बर कि इट्स अ यूनिट सर्कल. अगर पॉइंट यहाँ पर है, इफ पॉइंट इज लाइंग ओवर हियर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 1, 0 आपको पता है, दिस इज नोन टू अस, यू नो. तो इफ दिस इज द सर्कल, यही फंडा यूज करना है आपको इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें एंगल एक्सिस के ऊपर लाई करता है. मतलब वो जो पॉइंट है, अगर वो एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो हमें सिर्फ 4 ही पॉइंट्स याद रखने हैं. अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0. रेडियस इज 1 ना, तो दिस इज 1, 0. अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इट इज 0, 1. अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इट इज -1, 0. चलो यार नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज -1, 0. एंड अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इट इज 0, -1. दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज. किसी एक जगह पे, किसी एक पोजीशन पे पॉइंट P होगा. नाउ राइट नाउ यू ऑब्जर्व पॉइंट P इज ओवर हियर, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो -1, 0 है. अब यहाँ पे नो ट्राइंगल, नथिंग डूइंग. ठीक है, डायरेक्टली हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा. चलो फर्स्ट ड्रॉ दिस. ये भी आप ड्रॉ करो, ये तो सॉल्यूशन है. एंड जस्ट ड्रॉ दिस एट द टॉप ऑफ द पेज. ये ड्रॉ कर लो. ठीक है, so write down here Px, y is equivalent to P -1, 0.
तो x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर और यू कैन रिट डाउन हेंस, चलो डायरेक्टली ना, x का -1 है, y का वैल्यू 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेशन, राइट, ऑन द नेक्स्ट लाइन लिखो, व्हाट डू वी गेट बाय डेफिनेशन। ठीक है, क्या मिलेगा बाय डेफिनेशन स्टूडेंट्स? तो साइन थीटा, साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन थीटा इज डिफाइंड एज y, तो पहले सब डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। cos थीटा इज डिफाइंड एज x, tan थीटा इज डिफाइंड एज y by x, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक 180 इज 1 by y, sec 180 degrees is 1 by x, and cot 180 degrees is x by y. Right, and substitute the values. So sin 180 degree is given by y, but y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है 0, तो sin 180 डिग्री का वैल्यू 0 है। You can see your trigonometric table, ठीक है ना। After that cos 180 डिग्री का वैल्यू x है, x का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू इज -1, tan 180 डिग्री इज y अपॉन x, तो 0 अपॉन -1, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। कोसेक 180 डिग्री, तो 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, विच इज डिनोटेड बाय द नोटेशन इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड है। 1 बाय x, इसका रेसिप्रोकल -1, एंड इसका रेसिप्रोकल, ये भी वैल्यू 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल भी इंफिनिटी आएगा। तो ये 180 डिग्री के रेशो के वैल्यूज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 180 डिग्री के वैल्यूज है। ये प्लीज नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर। बस इसमें ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं है। तो 180 डिग्री या पाई रेडियन भी दे सकते हैं वो हमें, तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। और इफ द रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होता, तो ये जो एंगल है ये -180 डिग्री रोटेशन होता, तो दिस ये जो आंसर्स है ना, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर -180 डिग्री और -पाई रेडियन के लिए भी यही सेम आंसर्स है। अगर उसको चेंज करके देना है, तो जो बड़े एंगल्स है, सपोज 180 को, ये 180 डिग्री रोटेशन है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्रीज को 360 ऐड कर देगा, मतलब वापस, तो दिस सम विल बी 0 4 1 कैरी फॉरवर्ड 540 डिग्रीज। तो अगर आपको 540 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछेंगे, तो इट इज सेम एज 180, 540 माइनस 180 इज 360, ये तो ऐड किया है ना हमने, दिस प्लस दिस इज 540, तो 540 माइनस 180 विल बी 360, तो जो 180 के आंसर्स है वही 540 के आंसर्स होंगे। तो ये आपको इंस्टेड ऑफ 180 वो 540 डिग्री भी पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, इट्स द सेम थिंग। इधर 540, ये 180 है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यहाँ पे 180 के जगह पे वो आपको 540 डिग्री के भी एंगल्स पूछ सकता है, वैल्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल, -270 डिग्री और -3 π/2 रेडियंस। दिस इज अ यूनिट सर्कल। देखिए -270, एंगल इज नेगेटिव, मींस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दिस इज इनिशियल आर्म OA इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, और -270 डिग्री ये एंगल है, -270 डिग्रीज एंगल, -3 π/2। नाउ -270 जो एंगल है, दैट इज सेम एज, अगर ऐसा रोटेट हुआ तो दिस एंगल
विल मेजर 90 डिग्री, मतलब -270 के जो आंसर्स आएंगे वो सेम 90 डिग्री के एंगल के आंसर्स है ना। तो 90 डिग्री और π/2 रेडियन इसके सेम वैल्यूज है, लाइक ऑफ दिस -270, बट हम डिस्कस कर रहे हैं -270, तो -270 के ही वैल्यूज। अच्छा, नाउ रोटेट होके पॉइंट यहाँ पे आएगा, देखो दिस इज पॉइंट P, दिस इज द टर्मिनल आर्म, दिस इज इनिशियल आर्म एंड दिस इज द टर्मिनल आर्म. So point P is lying over here. Now since point P is lying over here, P के coordinates देखो 0,1. तो x, y, तो 0,1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूट करो. तो साइन ऑफ -270 डिग्री, -270 सब जगह पे पहले एंगल लिख लेता हूं मैं, -270. ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y by x not defined, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी का रेसिप्रोकल इज 0, है ना. 0/1 की वैल्यू 0 होता है. दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर. सेम आप देखो, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया ना प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आप देखो साइन 90 डिग्री का वैल्यू, मतलब जो -270 का आंसर है वही 90 का आंसर है ना. उसी साइन 90 का वैल्यू इज 1, कॉस 90 का वैल्यू इज 0. ठीक है, tan 90 डिग्रीज इज नॉट डिफाइंड, तो ये सेम 90 का भी सेम आंसर है. तो ये 90 का भी प्रॉब्लम कवर हो गया, -270 भी रेडियन में भी लिख दिया. चलो राइट डाउन. अभी सपोज ये 90 डिग्रीज को अगर 360 हम ऐड करते हैं, 90 डिग्री रोटेशन को, तो 360 को इफ वी ऐड 90 टू द 90 को 360 ऐड करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल गिव अस नथिंग बट 450 डिग्रीज. तो 450 डिग्रीज के भी यही सेम आंसर आएंगे. इफ दे आस्क यू 450 डिग्री के वैल्यूज फाइंड करो, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 450 डिग्रीज, तो 450 मतलब 360 कंप्लीट हो गया, 360 प्लस 90 इज 450. तो जो 90 का आंसर है वही 450 का आंसर आएगा. ठीक है ना, प्रोसीजर वही रहेगा. नोट डाउन, दिस माइट बी आस्क्ड. चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -90 डिग्रीज और -π/2 रेडियंस. ठीक है ना. So now -90 degree means the rotation is now clockwise. तो देखो ये -90 डिग्री एंगल है, नेगेटिव. दिस इज -90 डिग्री एंगल. तो पॉइंट P यहाँ पर लाई करेगा. दिस इज इनिशियल आर्म एंड दिस विल बी द टर्मिनल आर्म. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अब देखो क्या मिलेगा, इट विल बी 0, -1. तो Px, y is 0, -1. तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1 डाल दो. तो साइन ऑफ -90 डिग्री, पहले एंगल्स लिख देता हूँ सब जगह पे. ठीक है, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, बट खाली ये चीज हमें याद रखनी है. तो नाउ साइन ऑफ माइनस इज ना -90 डिग्री इज y एंड y का वैल्यू इज -1, x का वैल्यू 0, y अपॉन x, दिस अपॉन दिस नॉट डिफाइंड. रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल इज इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल इज 0. दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. अब ये -90 डिग्री है. नाउ दिस इज सेम एज व्हाट, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये जो एंगल है ये 270 डिग्री का है.
तो दिस इज सेम एज, ये जो वैल्यूज है 270 डिग्री के भी सेम वैल्यूज आएंगे, 270 डिग्री और 3π/2 रेडियन के भी सेम वैल्यूज आएंगे। देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ओपन करो, जो टेबल का चार्ट दिया ना मैंने आपको बना के लास्ट टाइम, ओपन देखो, साइन 270 डिग्री का देखो वैल्यू -1 मिलेगा आपको, कॉस ऑफ 270 डिग्री का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। यू कैन चेक इन योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो वो जो टेबल के वैल्यूज है, व्हाट वी हैव डन टुडे, आज क्या सीखा हमने कि वो जो टेबल के वैल्यूज है वो कहाँ से आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी ऑब्टेन। ठीक है ना, तो चलो प्लीज नोट डाउन दिस, क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। So I'm not following the order in which textbook has given. तो पहले कुछ हमने अलग वाले क्वेश्चंस लिए, सेकंड थर्ड पहले, and then we have done the first one. ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन दिस, then we'll move on to the next question. Okay students, so exercise 2.1 का 6th क्वेश्चन है ये, find trigonometric functions of angles in a standard position whose terminal arm passes through these points. अभी एंगल नहीं मालूम है हमें, but we know that the terminal arm passes through the points. So let us start with the solution of the first example. ठीक है, solution of first, अभी अगर आप देखो तो टेक्स्ट बुक में ये एक ही एग्जांपल है, दिस इज एक्स्ट्रा, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, नॉन टेक्सचुअल एग्जांपल है। चलो नाउ ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर्कल नहीं ड्रॉ करना है अभी यहाँ पे, वी डोंट हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। x o x dash y o y dash, now this is angle in a standard position, always has to be। तो ये इनिशियल आर्म है, this is, you can say this is ray OA and this point P is lying in the fourth quadrant, x positive है, y negative है, so this is our terminal arm and this angle is theta। ये थी एंड पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट P है कहीं पे 3,-4। Now what I'm going to do, I'm going to draw, point पे लिखता हूँ मैं, I'm going to draw a perpendicular from this point P, P की coordinates है 3,-4, ये perpendicular draw किया, तो this is point M। चलो draw this first of all। अब वही सेम है स्टूडेंट्स, लेंथ OM, this is X, this is Y, ये PM है, and this is R। Now R is not 1, हमने सर्कल नहीं ड्रॉ किया, दिस इज नॉट अबाउट अ यूनिट सर्कल, ये R इट इज लेंथ OP, बट अभी R 1 होगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, चलो ड्रॉ दिस, देन विल मूव अहेड इन द प्रॉब्लम। So I hope everyone must have drawn till here students. Now इसको आप मार्क कर दो, ये थीटा एंगल है, we don't know how much is theta, but इसके रेशियोज हमें फाइंड करने। Now we are concerned about the point P. Now so you observe from this triangle, by using Pythagoras theorem we know that x square plus y square is equal to r square। तो चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो from length OM is x, length OM is x, length PM is y, and length OP is denoted by r। Now from this triangle POM, in triangle POM, what do we observe, that एक r square, ऐसा उल्टा लिखते हैं हम, चलो ऐसा करते हैं, r square is equal to x square plus y square।
So therefore r will be how much? R will be under root of x square plus y square होगा. Now जो point P है, x का value is 3 and y का value is -4. ठीक है ना? तो here ये भी लिख लो आप. Here Px, y is equivalent to P 3, -4. तो अंडर रूट ऑफ x square plus y square, तो 3 का स्क्वायर, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16. तो देयरफॉर r का वैल्यू इज नथिंग बट 5 √25 है ना. तो r का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -4 है. तो रीड डाउन बाय डेफिनेशन. so this by definition recollect sin theta is defined as y by r. ठीक है ना. तो sin theta का जो है फॉर्मूला वो है y by r फाइंड करने का. then cos theta is defined as x by r. tan theta is defined as y by x. ठीक है, ये वैल्यूज हम फाइंड करेंगे. then cosec theta is r by y. sec theta is r by x and cot theta is x by y. बस अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. x का वैल्यू, y का वैल्यू और r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो sin theta is y upon r. तो y is -4 upon 5. cos theta is x by r. So it is 3 by 5. tan theta is y by x. Or you can say tan is sin upon cos. So this upon this करेंगे, so this upon this value, so it will be -4 by 3 आएगा. cosec theta sin theta का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा -5 upon 4. इसका रेसिप्रोकल आएगा 5 upon 3 and reciprocal of this will be -3 upon 4. That's it, problem is over. ठीक है, write down. अब देखिए ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P का पोजीशन फिक्स नहीं है. मतलब पॉइंट P कैन बी ऑन द रे एनीवेयर. पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है. पॉइंट P का पोजीशन जो टर्मिनल आर्म है उसके ऊपर फिक्स नहीं है. इट कैन बी एनीवेयर. तो जस्ट रैंडमली वी हैव टेकन पॉइंट P ओवर हियर. अनडाउटेडली, ऑब्वियसली इतना तो हमें पता ही है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल, -7, -24. बट बिफोर दैट यू कंप्लीट दिस आउट. चलो, नेक्स्ट वन. as I was talking, let us move on to the second subpart. Non-textual example, it doesn't matter. Now x and y both are negative. So point third quadrant में है. चलो, draw the coordinate axis. x o x dash, y o y dash. This is initial arm and this is the terminal arm, and this angle is measuring theta. और जो point P है, यहाँ पे ले लेते हैं हम point P को. point P की कोऑर्डिनेट्स है -7, -24. अब P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू x एक्सिस व्हिच मीट्स एट पॉइंट M. तो एज यूजुअल हमें पता है ये x होगा, ये y होगा, and this is r. This distance is r. So point P x, y is P -7, -24. ठीक है ना. तो चलो, ये डिस्क्रिप्शन सेम है, ये भी सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, वैल्यूज चेंज होने वाले. r is equal to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर
तो -7 का स्क्वायर इज 49 एंड -24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर इज नथिंग बट 576. So R will be under root of 576 plus 49. 5. So this will be 625 आएगा. 625 under root of 625 मिलेगा हमें ये वैल्यू. Now tell me what will be under root of 625. You all know 625 का रूट 25 आएगा बस. तो x का वैल्यू -7, y का वैल्यू -24 और r का वैल्यू 25. सब्स्टिट्यूट करो, प्रॉब्लम विल गेट ओवर. तो साइन थीटा इज डिफाइंड एज y अपॉन r. y का वैल्यू कितना है? -24/25. cos थीटा इज x अपॉन r. x का वैल्यू है -7/25 आएगा. r का वैल्यू tan is y/x या sin अपॉन cos, दिस अपॉन दिस करेंगे तो इट विल बी 24/7. ठीक है. कोसेक इसका रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल -25/24. इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा तो -25/7. इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा, दैट्स 7/24. प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. ठीक है, यहाँ तक लिख लो. So now with the students from exercise 2.1, okay, इसमें जो दो क्वेश्चंस है ना, particularly tell you question number 7 and question number 9. Now question number 7 and question number 9 next exercise में मैं include करूंगा because they are dependent on fundamental identities. और fundamental identities और कुछ थोड़ा सा मेरे को और आपको theory part देना है that I have not given to you. Even textbook ने एक्सरसाइज 1 करने से पहले फंडामेंटल आइडेंटिटीज नहीं दिए हैं. फंडामेंटल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज के बाद दिए हैं. बिफोर द नेक्स्ट एक्सरसाइज दे हैव गिवन, बट आई वोंट डू दैट वे. आई विल फॉलो द प्रॉपर वे. पहले मैं आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज दूंगा और फिर उसके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो करूंगा ना. ठीक है ना. सो दैट वुड बी मोर बेटर. तो टेल यू एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 and 9 we will take it in the next exercise, but before that उससे जो theory part related है वो हम करेंगे. So for right now exercise number 2.1 is over. ठीक है. So next time when we meet we will do some theory part and then we will move ahead. Okay, so please keep studying and keep watching my YouTube channel. Thank you very much.